Welcome children. Today we move ahead in our third lecture of this chapter 10 Geography with a topic related to the Ragi. You all must have heard about this particular word that is Ragi. Naturally नगली word तो use हम करते ही नहीं और शायद तुमने सुना भी नहीं होगा. But this is your very important for your 3 marker. Sometimes asks for 2 marker also at the same time for the short note. So let's start. And any pink, blue, yellow boxes that are in your chapters 1 to 21 of SS, you have to learn it either for objectives and ये जो many points वाले हैं तो short note में पूछे जा सकते हैं. So just don't skip it off कि things to know मतलब सिर्फ जानना है, learn नहीं करना. You have to learn it at the same time. So let's start. Ragi holds a very important place in the grass food crop sown in Gujarat. मतलब ये grass form में grow होता है and it is one of the food crops. Very important place it has in our state Gujarat. Ragi is a staple food of Aborigine, that is आदिवासी people in hilly region. तो ये ऑब्जेक्टिव्स में भी पूछा जा सकता है लाइक विच पर्टिकुलर ग्रास फूड क्रॉप हैज़ यूनिक प्लेस इन गुजरात, फिर विच पर्टिकुलर ग्रास फूड क्रॉप इज अ स्टेपल डाइट ऑफ आदिवासीज इन हिली रीजन ऑफ गुजरात. तो ऑल दिस ऑब्जेक्टिव्स विल हैव टू लर्न. अमंग ऑल द ग्रास फूड क्रॉप्स दैट आर सोन इन गुजरात एंड इन इंडिया, पर हेक्टर प्रोडक्शन ऑफ रागी इज मैक्सिमम. अब रागी खाली आदिवासी नहीं खाते, हम भी खाने लगे as it has lots of you can say nutrition and उसके biscuits होते हैं and they make chocolates and toast and lot many other things. So per hectare production ना सिर्फ गुजरात में लेकिन इंडिया में per hectare production जो सबसे maximum है वो है रागी का. Again it is known as finger millet, learnet or African millet in English and known as bauta in Gujarati. Nagli is extremely nutritious grass food crop. There is more of protein, minerals, vitamins in its grain as there is more fiber. अब fibrous जैसे हम कहते हैं ना कि fiber is very good for our health. तो ये बहुत ही fibrous food crop है. So as there is more fiber in Nagli, it is very beneficial for diabetic patients, cardiac patients, and proportion of calcium and iron also is very much more, you can say, in Ragi compared to other crops. So it is used for removing malnutrition also and in making of baby food. आदिवासी farmers eat rotla made from it, जबकि हम बनाते हैं biscuits and chocolates, toast, naan khatai, wafer, papri, etc. from its flour. Flour मतलब आटा, लोट, right? So once again इन पॉइंट्स यू कैन लर्न और फिर उसी के सेंटेंस बना के तुम एक एक सेंटेंस अलग अलग पॉइंट में लिख सकते हो सो दैट इट बिकम्स योर 3 marker शॉर्ट नोट. फर्स्ट ऑफ ऑल द अदर नेम फॉर नगली इज रागी. ऐसे बना सकते हो पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट. सो यू हैव टू लिसन इट कि कैसे एक ये आंसर को अगर 2 मार्कर भी है कैसे तुम उसे बड़ा बना सकते हो. सो पॉइंट वाइज यू कैन राइट बट इन सेंटेंस फॉर्म, हर एक को अलग अलग. Nagli other name is Ragi. Next, it has very important place in the grass food crops sown in Gujarat. Third, staple food of Adivasis in hilly region. And accordingly, point wise keep on writing all. And at the same time, for your 1 marker equally important. Next, oil seeds. तो बहुत सारे oil seeds हैं जैसे हम खुद यूज़ करते हैं. कई बार sunflower oil, कई घरों में सिंग का तेल यूज़ होता है, दैट इज कॉल्ड ग्राउंडनट. कई लोग कॉटन सीड यूज़ करते हैं, कॉटन सीड का ऑयल. लॉट मेनी और टाइप्स ऑफ ऑयल्स वी हैव इन आवर कंट्री और अलग अलग उसके फ़ायदे भी बहुत हैं. तिल का तेल होता है एंड इट इज़ सेड कि सालों तक बहुत फैमिलीज़ में हम देखते हैं, यूजुअली गुजराती फैमिली की फैमिली में ग्राउंडनट ऑयल सबसे ज़्यादा यूज़ होता है. बट एक्चुअली इज़ नॉट गुड कि हम सालों तक सेम ब्रांड और सेम सीड का ऑयल यूज़ करें. इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी, फॉर द हेल्थ ऑफ आवर बॉडी, दैट वी शुड यूज़ like every time, like every year, pick up a new
सीड ऑयल, या जैसे एक बार 1 साल या 2 साल ग्राउंडनट यूज़ किया तो फिर 1-2 साल तिल का यूज़ कर लो, या उसी साल में कई बार बीच में हम सनफ्लावर भी यूज़ कर सकते हैं, सोयाबीन भी यूज़ कर लो. सो ईच ऑयल will have a very different and positive impact on our body. So it is very healthy, but unhealthy to use throughout for years together the same form of oil, right? तो groundnut, तिल, सोयाबीन, कैस्टर ऑयल मतलब दिवेल ज़्यादा यूज़ मत करना. That will be very much I would say not harmful, but गड़बड़ हो जाएगी पेट में. तो फिर मस्टर्ड ऑयल, राई का तेल ज़्यादातर हम यूज़ नहीं करते क्योंकि वो ज़्यादा नॉर्थ में यूज़ होता है, लाइक बिहार, यूपी एंड ऑल. तो पहले के ज़माने में ये था कि जो स्टेट जो सीड ज़्यादा ग्रो करते थे, ऑयल सीड, उसी का तेल वो स्टेट वाले यूज़ करते या वो रीजन वाले. तो वैसे गुजरात में सबसे ज़्यादा ग्राउंडनट, अच्छी क्वालिटी के ग्राउंडनट हम ग्रो करते हैं, तो इसलिए ग्राउंडनट का ऑयल गुजरातीज यूज़ करने लगे. गुजरात के लोग भी ज़्यादा ग्राउंडनट ऑयल को यूज़ करते हैं. वैसे मस्टर्ड ग्रोन मोर इन यूपी, बिहार एंड ऑल, फिर राजस्थान एंड ऑल, तो वहाँ के लोग यूज़ करने लगे उसे. टुडे इन दिस मॉडर्न टाइम्स ईच एंड एवरी ऑयल इज़ अवेलेबल इन ईच एंड एवरी स्टेट, ईच एंड एवरी नूक एंड कॉर्नर ऑफ आवर कंट्री, राइट. एक छोटा सा गांव होगा तो वहाँ पे भी अगर जो दुकान है ग्रेनरी की, वो हर एक टाइप के, हर एक ब्रांड के ऑयल बेच रहा होगा. So that is why we can now consider our health and see that not to use for long time period the same form of oil. They hold an important position in an Indian meal. वैसे तो ऑयल ज़्यादा लेना अच्छा है ही नहीं for health, but yet yes, once again Indian families, Indian dishes never prepared without lots of oil. थोड़ा सा oil okay, but you know there are some कास्ट, सम फैमिलीज जहाँ पे इंडिया में हम देखते हैं कि देर इज़ अ लेयर ऑफ ऑयल ऑन द फूड, यू नो, जैसे हम कहते हैं ना कि स्विमिंग कर सकते हो ऑयल में, उतना ऑयल डालते हैं खाने में. सो दे होल्ड एन इम्पॉर्टेंट पोजिशन इन द इंडियन मील. आफ्टर एडिबल ऑयल, एडिबल ऑयल मतलब जो ऑयल हम खाने में यूज़ करते हैं, इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ऑयल सीड. अब जैसे ऑयल सीड में से उस ऑयल को हमने निकाल लिया, अब बाद में जो रेसिड्यू है, मतलब जो रह गया, तो यूजुअली पीपल यूज टू, पहले के ज़माने में यूज टू थ्रो इट अवे. अब जैसे मॉडर्न ज़माने में नई बहुत सारी नॉलेज हमारे पास है, लोगों के पास नई टेक्नोलॉजी है, तो सबका यूज़ करके हमने क्या किया, इस ऑयल केक को, मतलब रेसिड्यू जिसको हम कह सकते हैं, जो रिमेनिंग पार्ट आफ्टर रिमूविंग ऑयल, उसे हम एनिमल्स को देते हैं एज फॉडर, फिर बायोटिक मैन्योर बनाते हैं, उससे बहुत सारी चीज़ें बन सकती है. Then there is groundnut. First of all, groundnut oil is very important in oilseeds, among all the oilseeds. It requires black, loamy, sandy soil, and the land which does not retain moisture या water. मतलब वहाँ पे वो ज़मीन ऐसी होनी चाहिए जिसमें पानी वो कैप्चर करके ना रखे, right? 20-25 टेम्परेचर और 50-70 रेनफॉल, दिस आर द फेवरेबल कंडीशन. मतलब बहुत हैवी रेनफॉल भी अच्छा नहीं है, नहीं तो वो ज़मीन में वो पानी रिटेन होके रहेगा, तो ग्राउंडनट के जो प्लांट्स है वो ग्रो नहीं हो पाएंगे अच्छे से. ग्राउंडनट इज सोन एज खरीफ क्रॉप, एंड वेर एवर देयर इज इरीगेशन फैसिलिटी इट इज़ ग्रोन इन समर ऑल्सो. आजकल तो इरीगेशन फैसिलिटी हर जगह पे अवेलेबल है, तो समर में भी ग्रो कर लेते हैं लोग उसे. गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, तो मैंने पहले के लेक्चर में भी बताया था कि सबसे पहले के जो 2-3 नाम हैं उसी को याद कर लो फॉर मैप फिलिंग. तो गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र मेजर प्रोड्यूसर्स ऑफ ग्राउंडनट. इंडिया रैंक सेकेंड आफ्टर चाइना इन द वर्ल्ड इन ग्राउंडनट प्रोडक्शन. मतलब सबसे पहले राइस में भी फर्स्ट चाइना, सेकेंड इंडिया. वैसे ग्राउंडनट में फर्स्ट चाइना, सेकेंड इंडिया. गुजरात लीड्स द कंट्री इन ग्राउंडनट प्रोडक्शन. और इंडिया में सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, तो गुजरात में. डिस्ट्रिक्ट ऑफ जूनागढ़, जूनागढ़नी सिंह, वेरी फेमस. फिर गिर, सोमनाथ, अमरेली, राजकोट, भावनगर, दे प्रोड्यूस ग्राउंडनट. ग्राउंडनट ऑयल इज यूज मोर इन गुजरात एज फॉर इन आ मील्स एज एडिबल ऑयल फॉर फूड आइटम्स. फिर है सीसम, मतलब तिल. कई लोग उसको सिसेमी भी कहते हैं. दैट्स ऑल्सो ओके. प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट एज इन डिफरेंट कंट्रीज. तो सिसेमी भी कह सकते हो, सीसम भी बोलते हैं लोग,
तिल भी कह सकते हो, राइट? तिल ऑयल इज यूज इन इंडिया सिंस एंशियंट टाइम, दैट इज सिंस एजेस. इन नॉर्थ इंडिया इट इज रेन बेस्ड खरीफ क्रॉप, मतलब बारिश के समय पे ये ग्रो होता है. तो इन नॉर्थ इंडिया इट इज ग्रोन दैट वे. इन साउथ इंडिया इट इज सोन एज रबी क्रॉप. ओकेजनली ए जेड क्रॉप ऑल्सो. जेड तो पता ही है तुम्हें. ऑलमोस्ट ऑल द स्टेट ग्रोज तिल, क्योंकि आजकल इरिगेशन फैसिलिटीज अवेलेबल है हर जगह पे. अमंग ऑल ऑयल सीड्स तिल हैज मोर कंटेंट ऑफ ऑयल. तो सब में देखो तो सबसे ज़्यादा ऑयल कंटेंट हर एक सीड को अगर कंपेयर करो तो मैक्सिमम तिल सीड में ऑयल ज़्यादा मिलेगा. इन ऑलमोस्ट ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इट इज़ यूज एज एडिबल ऑयल. मेजर प्रोड्यूसर्स वंस अगेन गुजरात, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, कर्नाटका, MP, etc. Gujarat ranks first in India in terms of till production and also groundnut. And also in the area zone, maximum production. Suppose कि पूरी इंडिया में 10 स्टेट में तिल हम ग्रो करते हैं, राइट? तिल प्रोडक्शन हो रहा है. अब एरिया मैक्सिमम प्रोडक्शन का किसके पास है? गुजरात. बनासकांठा ग्रोज मैक्सिमम तिल. मैक्सिमम एक्सपोर्ट ऑल्सो इज डन बाय आवर कंट्री. मस्टर्ड मतलब that black one that we put for ना दाल में देखते हो, सब चावल सॉरी सब टाइप के वेजिटेबल में भी डालते हैं. रई, आई डोंट नो व्हाट डू यू कॉल, बट वी कॉल इट मस्टर्ड. इट्स अ रैबी क्रॉप, important crop of North India. Mustard seed and its oil are used for medicine and also as edible oil. So it is used for medicine also and used for our food also. Rajasthan, UP, as I told you just now, West Bengal, Gujarat, MP are major producers of mustard. Coconut, तो साउथ में डायरेक्टली चले जाओ, राइट? अंडमान निकोबार आइलैंड जा सकते हो मतलब मैप फिलिंग के लिए. सो कोकोनट इज अ प्लांटेशन क्रॉप ऑफ हॉट ह्यूमिड क्लाइमेट, कोस्टल क्लाइमेट स्पेशली, सॉल्टी लैंड, सलाइन लैंड. तो कोस्ट के नज़दीक की ज़मीन तो वैसी होगी सलाइन. इन इंडिया कोकोनट प्लांटेशन आर फाउंड इन कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, अंडमान निकोबार. In Gujarat, it is grown near coastal region. A special type of coconut tree, which is shorter in height but gives more coconut production, is developed. In South India, coconut oil extracted from coconut kernel is used as edible oil. Besides, is what is useful as healthy drink. Plus, उसके जो ऊपर का जो कोकोनट के वो सूखने के बाद that brown color पार्ट, आउटर शेल दैट वी गेट, उसमें से रोप्स भी बनते हैं और डेकोरेटिव पीसेस बनाते हैं लोग. फिर बहुत सारी चीज़ें बनती है. हेयर ऑयल, केरला चले जाओ तो कोकोनट के ऑयल में बनाना की वेफर भी फ्राई करते हैं वो लोग. सो लेट मैनी दे पुट इन हेयर ऑल्सो दिस कोकोनट ऑयल. दे यूज इट एज फूड ऑल्सो. इसलिए केरलियंस के बाल काले, लंबे, घने होते हैं. You need not follow the advertisement shown on the TV, right? Castor oil. Castor oil मतलब दिवेल, जो सर में डाल सकते हैं, लेकिन ज़्यादा पीने से गड़बड़ी. as I told you, दिवेला नहीं, it is called दिवेल. Castor is also known as दिवेल locally. Locally मतलब किसी किसी regions में दिवेल कहते हैं उसे. It is both खरीफ and rabi with 64%. Learn it. With 64%, India is the largest producer of castor in the world. China, Brazil. China second, Brazil third. About 80% of the production of castor comes from Gujarat. Andhra Pradesh and Rajasthan are other producers. In Gujarat, districts of Banaskantha, Patan, Sabarkantha, Rajkot, Junagadh, Amreli, etc. Need not learn. Produce in little quantity. एक आध लर्न कर लेना, ठीक है. पाटन ईजी होगा, राजकोट कोई भी एक ले लो. लेकिन पूरे वर्ल्ड में इंडिया फर्स्ट, सेकेंड चाइना, थर्ड ब्राज़ील, इंडिया में सबसे ऊपर गुजरात, फिर आते हैं आंध्र प्रदेश, राजस्थान और बाकी के स्टेट. और गुजरात में भी बहुत सारी जगह पे जैसे पाटन, राजकोट, जूनागढ़ एक्सेट्रा. ऑयल फ्रॉम कॉटन सीड, सनफ्लावर, पैडी दैट इज राइस, मेज आर यूज्ड नाउअडेज मोर एज एडिबल ऑयल. नाउ हॉट बेवरेजेस फेवरेट, टी, कॉफ़ी, रबर मत बोलना क्योंकि आदत है बोलने की टी, कॉफ़ी, रबर. बट वी विल से हॉट बेवरेजेस, टी, कॉफ़ी, कोको. तो टी ले लेते हैं सबसे पहले. वेरी इंटरेस्टिंग. टी इज़ अ प्लांट ऑफ ट्रॉपिकल एज वेल एज टेम्परेट जोन. मतलब नॉर्थ में तुम दार्जिलिंग चले जाओ तो भी वहाँ पे देखोगे दार्जिलिंग की चाय फेमस.
साउथ में जाओगे तब भी कितनी सारी जगह पर हम देखते हैं, जैसे कर्नाटक का कुर्ग रीजन, वेरी फेमस, राइट, फॉर, वहाँ पे कॉफ़ी प्लांटेशंस भी है, साउथ में टी प्लांटेशंस भी है, राइट. सो टी इज अ प्लांट ऑफ ट्रॉपिकल एज वेल एज टेम्परेट जोन. टी लीफ एंड इज टेंडर, मतलब वेरी सॉफ्ट स्प्राउट्स. स्प्राउट मतलब मूंग को भिगो के जब मम्मी रखती होगी ओवरनाइट या 5-10 घंटे, फिर जब उसको कवर करके रख दें या पोटली कपड़े में बांध के रखते हैं, आफ्टर 8-10 आवर्स व्हेन वी ओपन इट एंड सी, तो उसमें से वाइट हेयर जैसा बाहर निकल रहा है, दैट इज कॉल्ड स्प्राउट. तो द टी लीफ एंड ए सॉफ्ट स्प्राउट आर प्रोसेस्ड. तो चाय की पत्तियां जो ग्रो होती है उसको, देयर इज अ वेरी स्पेशल वे हाउ दिस लेडी यू कैन सी ओवर हियर, एक स्पेशल वे है कि कैसे प्लग करते हैं. हम तो फटाक से सब कुछ प्लग कर लेंगे, एक डंडी पकड़ी, सारे लीव्स आए, हाथ में निकाल दिए, दैट इज नॉट द वे. तो वो प्लांट मर जाता है. तुलसी प्लांट के साथ भी शायद कई बच्चे ऐसे ही कर रहे होंगे. डोंट डू इट. एक एक लीफ को प्लग करना है, बट वी डोंट हैव दैट पेशेंस, राइट. यहाँ पे स्किल्ड लोग होते हैं, नॉर्थ में आसाम है, दार्जिलिंग एज आई टोल्ड यू, साउथ में चले जाओ कई जगह पे, तो ये सारे लोग स्किल्ड हैं, जो पेशेंस भी है उनके पास, स्किल भी है, और एक एक लीफ प्लग करते हैं. And then they are used in is powder and small leaves are used in drinks. Processing के बाद मशीन में. India produces maximum tea after China, Sri Lanka, China and India leading tea exporters. Slopy land is required, क्योंकि पानी जैसे अगर वहाँ पे भर जाता है तो देखो पानी भी ज़्यादा चाहिए, बारिश ज़्यादा चाहिए, मोर देन 200 सेंटीमीटर रेनफॉल. और अगर ज़मीन सीधी हुई, 200 से ज़्यादा बारिश, मतलब कि पानी वहाँ पे इकट्ठा होने लगेगा, तो वो प्लांट मर जाएगा. सो व्हाट वी नीड इज 2 थिंग्स एट अ टाइम, 200 और मोर सेंटीमीटर रेनफॉल एंड स्लोपी लैंड, ताकि वो पानी मिले भी लेकिन आगे बह भी जाए, राइट. तो स्लोपी लैंड वेयर द वाटर इजीली फ्लोज डाउन. फिर चाहिए उस सॉइल को गुड आयरन कंटेंट, 20 to 30 टेम्परेचर, अबाउट 200 सेंटीमीटर रेनफॉल, कमिंग इन अ फॉर्म ऑफ शावर्स throughout the year. These are the favorable condition for tea plantation. Tea is grown more in Assam, West Bengal, Uttarakhand, UP, Tamil Nadu, Karnataka. Assam and West Bengal produce about 75% tea of the country. West Bengal, that is Calcutta side and all you will see. तो वहीं से तुम जा सकते हो ऊपर दार्जिलिंग. Tea leaves are very skillfully plucked from the plant, as I just informed you. Now we come over to coffee. कॉफ़ी इज रेड. रेड मतलब नर्चर करते हैं, ध्यान रखते हैं पूरे टाइम, लाइक यू नो मंथ्स इट टेक्स टू ग्रो. तो कॉफ़ी इज रेड ओवर द अगेंस्ट स्लोप्स ऑफ द माउंटेन, बट अंडर द शेड ऑफ अनदर ट्री. एक बड़ा सा ट्री होगा, उसके शेड के अंडर कॉफ़ी के प्लांट को नर्चर करते हैं, ग्रो करते हैं, ध्यान रखते हैं, बिकॉज डायरेक्ट सनलाइट विल डिस्ट्रॉय द कॉफ़ी प्लांट in such a way that no direct sunlight falls on the coffee leaves. Coffee crop needs again same 150-200 centimeter rainfall, 15 to 20 temperature, same like tea, slopy mountain land, and coffee is grown in great amount in Karnataka and Kerala, and also Tamil Nadu. Yes, Kurg region of Karnataka I told you very famous for coffee production, और कर्नाटका में टी भी कई जगह पे ग्रो होती है. Coffee seeds are extracted out of the nuts, then they are grinded, and then it is used as a drink. Then the third is cocoa, which everyone loves a lot. Sweet cocoa, not unsweet वाला. Unsweet वाला कड़वा होगा. This is sweetened cocoa powder. Cocoa is prepared out of the seeds of cocoa fruit. Cocoa मत बोलना. Cocoa is a beverage. Hot भी पी सकते हो, cold भी पी सकते हो. Chocolate is prepared from it. It requires hot humid climate, more rainfall. African countries are major producers. Learn it. Cocoa production is on increase in Kerala, Karnataka, same place again. Andhra Pradesh, Tamil Nadu states. तो टी, कॉफ़ी, कोको के लिए मोर और लेस सेम टेम्परेचर, सेम रेनफॉल, क्लाइमेट सेम, और जो स्टेट्स हैं वो भी सेम है यहाँ पे. लेकिन वर्ल्ड में हम देखें तो कोको के लिए अफ्रीकन आर द मेजर प्रोड्यूसर्स. Then we come over to cotton. Very important for a 3 marker. Utterly important, as I told you, wheat, rice,
वैसे कॉटन, शुगर केन इक्वल इम्पॉर्टेंट है, वैसे इम्पॉर्टेंट सभी होगा क्योंकि बाकी नहीं पूछे जाएंगे तो उसमें से 1 मार्कर आ जाएंगे। या मैप फिलिंग होगा तो नो वे दैट यू आर गोइंग टू स्किप ऑफ, ठीक है तो 1 मार्कर ही है, अच्छा ठीक है जाने दो, ये तो 1 मार्क का ये नहीं करते हैं, चलो वो भी छोड़ देते हैं, 2 मार्क का ही तो है बाद में कर लेंगे, ठीक है करना ही नहीं है। वैसे 1 मार्क 1 मार्क 1 मार्क करते 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 यू रीच अप टू 100, मतलब 100 मार्क का करते ही नहीं है, कुछ नहीं करते। सो डोंट डू दिस। 1 मार्क हैज़ इक्वल इम्पॉर्टेंस टू योर दैट, मेक इट 100। क्लियर? तो टारगेट हमेशा हाई रखो, 100 ऑन 100, तब जाके 80-85 आएंगे। हम टारगेट रखते हैं 80 अप। सी यू आर नॉट इवन क्लियर। व्हेन आई मेनी टाइम्स आई यूज्ड टू आस्क माई चिल्ड्रन कि भाई व्हाट्स योर गोल, तो कहेंगे फॉर 10th स्टैंडर्ड, परसेंटेज के बारे में। वैसे तो गोल्स बहुत होते हैं आजकल कि भाई अरे अभी तो वैकेशन चल रहा है, रिलैक्स, चलो थोड़ी गेम खेल लेते हैं स्मार्टफोन पे, फिर यू नो लॉट मैनी, बहुत सारे गोल्स हैं आजकल छुट्टियों में, राइट? क्योंकि स्कूल तो चालू है नहीं, ट्यूशन बाद में देख लेंगे। सो यू हैव टू मैनी रीजन्स फॉर नॉट स्टडी, नो रीजन टू स्टडी। तो वंस अगेन आई वुड से सेम, कर लो पढ़ाई मस्त एकदम, यू विल एंजॉय। तो गोल कई बार मैं अपने बच्चों को पूछती थी भाई गोल क्या है तुम्हारा रिलेटेड टू 10th स्टैंडर्ड या 9th स्टैंडर्ड के। 8th स्टैंडर्ड के बच्चे बहुत छोटे हैं, सो उनको तो बेचारों को बेबी बेबी कह के बुलाना है, तुम्हें भी वैसे माई डियर माई बेबी आई से, बट एट द सेम टाइम यू आर इनफ ग्रोन अप व्हेन यू कंपेयर योरसेल्फ टू 8th स्टैंडर्ड। तो गोल तो बनाना अच्छा वाला सीखो कि भाई 10th में तो बच्चे मुझे कहते थे क्लास में मैम 80 अप, जैसी मैम 90 अप। तो चलो मैं हर बार ये क्वेश्चन भी पूछती थी टुडे विच आई कांट स्टॉप माई सेल्फ आस्किंग यू। अब पता है कि जवाब तो उस और से मुझे पता नहीं चलेगा, बट एटलीस्ट तुम मेरा क्वेश्चन सुन सकते हो एंड आई गिव यू द आंसर ऑल्सो बिकॉज आई विल नॉट बी वेटिंग ओवर योर फॉर योर आंसर। तो ये हम पूछते थे हर बार, हु वांट टू स्कोर अबाउट 35। तो एक भी बच्चा हाथ ऊपर नहीं करता। आई वुड से 40, 45। और ये डायलॉग जो मेरे 8th के बच्चों ने सुना था वो 9th में हंस पढ़ते थे, उनको पता था सब कुछ। 8th 9th के बच्चों ने सुना था वो 10th में ये क्वेश्चन पे हंसते थे क्योंकि उन्होंने तो 2-2 साल ये मेरा सवाल सुना। तो दे यूज्ड टू जस्ट लाफ अ लॉट and we used to enjoy literally. Class enjoyment is something very different, but yes, I enjoy here also at the same time. तो 50 अप कोई हाथ में सी, आशाएं कितनी ऊंची हैं बच्चों की, 50 के ऊपर भी जाना नहीं, 50 अप नहीं, 60 अप भी नहीं, 70 अप भी नहीं, 75। अब जैसे मैंने पूछा 80 अप, ये हाथ ऊपर आने लगे, अभी भी थोड़े हाथ नीचे हैं, और मैं कहूँगी 90 अप, बाकी के हाथ जो 4-5 नीचे थे ऊपर आ गए। इंग्लिश इसलिए कहती हूँ, इंग्लिश में सिर्फ हंसो मत, इंग्लिश में चलो भी मत, इंग्लिश में देखो मत, इंग्लिश में बोलना शुरू कर दो, इंग्लिश में समझना शुरू कर दो। प्लीज़ माई डियर चिल्ड्रन, आई वुड नीड टू एक्सप्लेन टू यू इन हिंदी, बट वॉट आई सी इज़ कि पूरा लेक्चर अगर इंग्लिश में जा रहा है, देर आर मैनी जिनको बम्पर जा रहा है। इनिशियली देर वॉज सम ईयर्स बैक 1 or 2 स्टूडेंट टोल्ड मी मैम गुजराती में भणाए वो ने, सॉरी अगर मैं गुजराती में पढ़ाऊंगी मेरे बच्चे फेल हो जाएंगे, दैट इज 100% आई एम श्योर। सो गुजराती आई एम नॉट गुड एट, माई ग्रामर इज 2-0 इन गुजराती, सो डोंट एवर ट्राई टू इवन टेल मी कि मैम ये पैराग्राफ गुजराती में समझाओ, आई स्टार्ट शिवरिंग, राइट? हिंदी यस, मराठी तुम नहीं समझोगे, तो फॉर मी देन यस। एंड व्हेन यू आर इन इंग्लिश मीडियम, मेनी ऑफ यू आर इन कॉन्वेंट, तो आई वुड से इंग्लिश इज अ मस्ट। गुजराती मातृभाषा है, हिंदी किसी की मातृभाषा है, किसी की मराठी है, इट्स ओके, you should know it, right? but तो फिर इंग्लिश मीडियम में नहीं हम आते, हम कॉन्वेंट स्कूल में नहीं जाते, राइट? सी इट्स एन आयरनी, इट्स अ
वेरी सरकाजम लाइक आई ऑलवेज फील कि बच्चों को इंग्लिश मीडियम में डाला भी है, कॉन्वेंट में रखा हुआ भी है, लेकिन बच्चों को इंग्लिश फ्लुएंट, कई बच्चों को कई बोलते भी हैं, नो डाउट, बट कई बच्चे हु आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड माई थ्रू आउट लेक्चर इन इंग्लिश, एंड दैट्स वाई सम ईयर्स बैक आई डिसाइडेड कि इंग्लिश के प्रोनाउंसिएशन तुम्हें, मैं बीच बीच में अगर कहीं पे गलत जा रहे हैं तो अगर तुम्हारे बोलने में, तो मैं तुम्हारी माफ़ी मांग के, लेकिन मैं तुम्हें सिखाऊंगी दैट माई बेबी डोंट फील बैड, बट दिस शुड बी प्रोनाउंस्ड दिस पर्टिकुलर वे, राइट? माई बेबी शुड नॉट फील बैड अबाउट इट. नेक्स्ट इज, पूरा लेक्चर तो हिंदी में जाएगा नहीं, रीडिंग इन इंग्लिश एंड इन बिटवीन सम डिफिकल्ट पार्ट आई ट्राई वे आई नो कि नहीं समझ में आएगा, आई एक्सप्लेन इन हिंदी. अब गोल पे वापस जा रहे हैं कि गोल, यस, गोल हमारा, क्यों इंग्लिश का लंबा भाषण दिया मैंने, दैट यू शुड नो व्हाट एम आई सेइंग. 40 up is 90 also, 40 up was 80 also, and 40 up was 45 also. बच्चों ने अपने आप को 35, 40, 45, 70, 75 तक हाथ ऊपर नहीं करते थे, क्योंकि वो मानते थे, वो अप नहीं सुना, दिमाग में सेट कर दिया है बड़ों ने, 80 अप लाने हैं, 90 अप लाने हैं, तो दिमाग में दो कौन से फिगर बैठ गए, 80, 90, अप वर्ड नहीं सुनाई देता, राइट? अब 40, 50, 60, 70 तो क्या सुनाई दिया, 40 कौन लाए, 50 कौन ना भी, हमें तो 80 अप, 90 अप, बट डियर 40 अप वाज आल्सो 90, राइट? तो इंग्लिश बेहतर बनाते जाओ, स्टार्ट रीडिंग सम इंग्लिश न्यूज़पेपर्स, या ऑनलाइन भी बहुत सारे न्यूज़पेपर्स आते हैं, रीड कर लिया करो. टीवी देखो, सम इंग्लिश प्रोग्राम्स, गुड वन ऑफ कोर्स, राइट? एंड इंग्लिश मूवीज, यस, गुड वन, लाइक बेबीज डे आउट, एंड कौन से बहुत सारे, बेबीज डे आउट रिसेंटली आया था टीवी पे, ऑसम इट वाज. इंग्लिश मूवी हिंदी डब मत देखो प्लीज, राइट? सी इंग्लिश मूवी इन इंग्लिश, तब जाके इंग्लिश बेटर होगी. सो बैक टू कॉटन. कॉटन इज अ खरीफ क्रॉप. कॉटन होल्ड्स एन इम्पॉर्टेंट प्लेस एज अ कैश क्रॉप इन गुजरात एंड इन इंडिया. अब कैश क्रॉप, कैश क्रॉप मतलब कि अगेन स्टूडेंट्स हैव द आंसर, जिससे पैसे मिलते हैं, तो पैसे तो वीट से भी मिलते हैं, पैसे तो हमें कुछ भी चीज़ बेच के मिलेंगे. When I'm selling my service, I get money naturally. तो ये कैश क्रॉप होगा. ट्यूशन इज अ कैश क्रॉप? नो. कैश क्रॉप हैज इट्स ओन डिफरेंट डेफिनेशन, इट हैज इट्स डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग. सो पहले तो समझ लो व्हाट इज कैश क्रॉप. नाउ यू विल सी कि कई क्रॉप्स ऐसे हैं जो गोडाउन में डाल देते हैं, फिर ठीक है, हफ्ते के बाद, जैसे ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी ठीक ठाक हो गई, फिर वो चीज़ें हम अलग अलग स्टेट में बाय ट्रक या बाय रेलवे भेज देते हैं, अंडरस्टूड? बट तो हो गया 1 महीना भी, 10 महीने, 12 महीने तुम्हारे घर में वो चीज़ पड़ी है अभी भी, तो ख़राब नहीं हुई. हाँ, थोड़ी बहुत केयर ले लेते हैं, लेकिन ख़राब नहीं होती. लाइक शुगर, वीट, ज्वार, बाजरी, राइस, ये सारी चीज़ें मम्मी ने स्टोर में दम करके रखी है, 50-50 किलो, 25 किलो, राइट? देयर इज अ हैबिट ऑफ इंडियंस टू स्टोर इट. तो कैश क्रॉप ये तुम स्टोर नहीं कर पाओगे, उसे हो सके उतना जल्दी, जैसे कि अगर आज हार्वेस्टिंग हुई तो बाय टुमारो मॉर्निंग और बाय मैक्स टू मैक्स few hours में I would say we have to transport it to its processing factory, industry. जैसे शुगर केन जैसे ही हार्वेस्ट हुआ, मतलब कि ट्रक में भरा ही गया उसे, वेरी इंस्टेंटली इट इज सेंट टू द शुगर क्रिस्टल बनाने की फैक्ट्री, गुड़ बनाने की फैक्ट्री, खांडसरी, दैट इज नॉट प्योर, इम्प्योर, रॉ शुगर, स्लाइट वाइट येलोइश कलर. अभी वो पॉलिश भी नहीं होगा, इस अनइवन शेप पीसीज होते हैं,
तो खांड सरी ये सारी चीज़ें बनती है शुगर केन के जूस से। अब अगर वो शुगर केन भेजा गया लेट, चलो 3-4 दिन हो गए, तो वो शुगर केन का डंडा, शुगर केन, केन मतलब डंडा, तो शुगर का केन वो धीरे धीरे सूखने लगेगा। सूखा मतलब कि अंदर का जूस कम मिलेगा। अब जैसे ही वो लोग बेचने जाते हैं 4 दिन के बाद, तो उसका वेट होगा। अब जब वे करेंगे उसे सामने की फैक्ट्री वाले, प्रोसेसिंग शुगर फैक्ट्री वाले या गुड़ फैक्ट्री वाले, तो वज़न कम आएगा उसका, क्योंकि वो सूख चुका है, तो जूस कम निकलेगा, तो उसके पैसे भी कम मिलेंगे फार्मर को। इसीलिए जिस दिन हार्वेस्टिंग हुई उसी दिन ट्रांसपोर्टेशन, तो जूस भी ज़्यादा निकलेगा। अब जब वे करेंगे तो बहुत हैवी है वो केन, इट मीन्स इट हैज़ लॉट्स ऑफ जूस इन इट, पैसे ज़्यादा मिलेंगे। तो इंस्टेंट सेलिंग एंड इंस्टेंट अर्निंग, so called cash crop. And the reason, there is a big reason behind it. जैसे कॉटन बॉल्स को अगर स्टोर भी किया तो मॉइस्चर पकड़ लेगा, उसमें से धागे नहीं बनेंगे, थ्रेड। तो जैसे हार्वेस्ट ट्रांसपोर्ट, वैसे जूट, वैसे टी के लीव्स। तो मोर सो मेजॉरिटी हम देखते हैं कि ये सारी फैक्ट्रीज जो प्रोसेसिंग करती है, फिनिश प्रोडक्ट बना रही है, वो हमेशा ये एग्रीकल्चरल लैंड से बहुत नज़दीक ही होगी। या कई बार तो जो टी प्लांटेशन वाले होते हैं, राइट, जो ग्रो करवाते हैं अपने लैंड पे, उन्हीं की फैक्ट्रीज अपने ही ग्राउंड में होगी, नज़दीकी एरिया में। तो वही ओनर टी प्लांटेशन का भी होगा, वही टी फैक्ट्री का भी ओनर होगा। मैनी टाइम इट हैपन्स दैट वे। सो इट्स अ कैश क्रॉप एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर कंट्री, और गुजरात में तो बहुत ही ग्रो होता है। एट वर्ल्ड लेवल इंडिया इज अ सेकेंड प्लेस इन द प्रोडक्शन, यूज एंड एक्सपोर्ट ऑफ कॉटन. Cotton without seed is obtained from cotton plant, right? So cotton is obtained from cotton plant. This cotton is called white gold. अब जो cotton without seed हम obtain करते हैं उसको हम कहेंगे white gold. In India बहुत बेहतरीन बेस्ट क्वालिटी का होगा वो. Besides cotton, seed oil is also prepared. Edible oil is prepared from it. अब जो सीड जो रहता है उसमें से ऑयल निकालते हैं, बाकी का ऑयल केक डाल देते हैं एज वी डिड अर्लियर, एनिमल फूड की तरफ फॉडर. ब्लैक लावा सॉइल विच कैन मेंटेन, जो मॉइस्चर पकड़ के रखे वैसा लावाइट सॉइल चाहिए. सो ब्लैक लावा सॉइल विच हैज़ मोर ह्यूमिडिटी फॉर लॉन्गर टाइम, वैसा सॉइल विथ लॉट्स ऑफ मिनरल कंटेंट, हॉट ह्यूमिड क्लाइमेट, 20 to 35 temperature, 30 to 70 rainfall, all these are favorable condition for cotton. तो ये सारी चीज़ें चाहिए for cotton growth. Growing season for cotton is 6 to 8 months. Frost will damage the cotton crop. ये हमने wheat में भी किया था. wheat में वो sentence था नहीं, but I had explained to you कि wheat के लिए ठंड वाली जगह चाहिए and about 70-75 rainfall. तो पंजाब हरियाणा में विंटर तो है अच्छी खासी, तो हो गया वीट प्रोडक्शन, लेकिन बारिश इतनी नहीं होती, तो इरिगेशन फैसिलिटीज़ है भाखरा नंगल, हाँ, लेकिन वो इसलिए वीट ज़्यादा ग्रो करते हैं. लेकिन अगर ठंड ज़्यादा बढ़ जाए तो जो ड्यू ड्रॉप्स हैं वहाँ पे जो लैंड पे रहते हैं वो अगर फ्रॉस्ट हो गए, राइट, तो वो प्लांट खराब होने की पॉसिबिलिटी होती है. वैसे ही कॉटन, फ्रॉस्ट डैमेजेस कॉटन क्रॉप. In India, major cotton producing states are learned Gujarat, Maharashtra only. Telangana, Karnataka, Andhra Pradesh, Haryana, Rajasthan, Punjab, Tamil Nadu, Odisha, etc. Don't learn. As the farmers of Gujarat have accepted biotech cotton seed, Gujarat stands first in India in area sown. अब हमारे फार्मर्स हैं, गुजरात के फार्मर्स हैं, तो बीटी कॉटन सीड एक्सेप्ट कर लिए, तो मैक्सिमम कॉटन ग्रोथ इज इन गुजरात. गुड क्वालिटी, प्रोडक्टिविटी इज मोर, टोटल प्रोडक्शन क्वालिटी ऑफ कॉटन इज मोर. Cotton is grown more in Gujarat, in Surendranagar, Rajkot, Baroda, Ahmedabad, Sabarkantha, Mehsana, Botad, Bharuch, Kheda, Surat, Panchmahal, Amreli, Bhavnagar, Patan, Junagadh, Jamnagar district. अब listen carefully, very very carefully. If you have to, जैसे मैंने कहा था कि तुम्हें स्टेट मैप लर्न करने हैं. अब स्टेट मैप जैसे ही तुमने लर्न कर लिया, पता चल गया कि भाई गुजरात, लेट मी शो यू 1 minute.
ये इतना पार्ट तुमने लर्न कर लिया, ठीक है। गुजरात, राजस्थान पूरा बराबर नहीं आ रहा है सर्कल, और जम्मू कश्मीर, फिर हमने यहाँ पे ये जो थंब है, थंब जैसा दिखता है, दिस होल पोर्शन वी गो फ्रॉम योर टू योर। तो हमारे 7 सिस्टर्स हैं ये वाले, त्रिपुरा इज ओवर योर, देन दिस इज चिल्का लेक, राइट। देन वी कम टू केरला, फिर उसके ऊपर कर्नाटका तो के स्क्वायर, फिर तमिलनाडु, ऊपर आंध्र प्रदेश, देन उड़ीसा, फिर ये वेस्ट बंगाल, बीच में एमपी, बहुत 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 सारे। अब ये सारा, यस देन देयर इज महाराष्ट्र। तो अब ये सारा जो यूपी बिहार ऊपर है हमारा, दिस पोर्शन, देन पंजाब हरियाणा, फिर दिल्ली, राइट। तो पंजाब, दिस इज पंजाब हरियाणा, यू हैव ऊपर और चले जाओ तो उत्तराखंड। तो ये सारे जो हमारे स्टेट्स है वो तुम्हें लर्न करने होंगे। नेक्स्ट, अब जैसे तुम्हें पूछा गया कि भाई बता दो जूट। अब जूट मैक्सिमम ग्रो होता है नियर द, जहाँ पे ज़्यादा पानी मिले, तो ये मतलब रिवर साइड एंड ऑल। तो ये हमें मिल रहा है इन उड़ीसा, फिर वेस्ट बंगाल हुगली रिवर के पास। तो हमें ये सब दिखाने की ज़रूरत नहीं है, जो जूट का कलर है यहाँ पे बताया गया है। यू कैन जस्ट टेक से ओनली दिस मच सेक्शन यू कैन टेक, जो ये बताया गया है। रुको, जस्ट वेट अ मिनट। राइट, तो वी विल टेक ओवर योर फॉर जूट। तो तुम सिर्फ यहाँ से इतना ही ले लो, इट्स ओके, या फिर तुम ये वाला पोर्शन ले लो, राइट। बट फिर ये वाला पोर्शन इसलिए मैं मैं इसलिए ना बोल रही हूँ बिकॉज नॉर्थ ईस्ट में हमें आसाम में काफ़ी चीज़ें बताने के लिए अगर पूछा जाए, टी बता दो या फिर नेशनल पार्क सेंचुरी हम करेंगे, राइट। हमने ऑलरेडी कर भी लिया है 9 चैप्टर एंड ऑल, तो फिर ये तो हमारा पैक हो गया। तो ये तुम लोगे हमेशा जूट के लिए, ये चिल्का लेक के, ये जो चिल्का लेक है उसके आसपास का एरिया ही तुम लोगे, ये वाला, राइट। दिस सेक्शन यू विल टेक। देन वी गो टू से कॉटन। तो कॉटन हमने कहा कि गुजरात में मैक्सिमम है, तो चलो सिर्फ इतना सा ही एरिया बता दो तुम, राइट। देन वी गो टू शुगर केन। तो मैक्सिमम शुगर केन बिहार, यूपी, ये सारे जगह पे ग्रो होता है, तो हम वही लेंगे यहाँ पे। डोंट गो टू दिस स्मॉल रीजन। ये मैप सिर्फ ये 3 के लिए है, राइट। सो दे हैव शोन ऑल द प्लेसेस जहाँ पे ग्रो रहा है। हमें एग्जाम में सिर्फ एक स्टेट बताना है, एंड वो पूरा स्टेट भी पूरा डार्क कलर या कहीं पे मत डाल देना, जस्ट अ पार्ट ऑफ, राइट। डोंट शो द होल रीजन। और हर एक के लिए अलग अलग हम यहाँ पे अलग कलर बताएं, हम अलग डिज़ाइन बता सकते हैं, राइट। लेकिन बाजू में ये लिखना होगा ऐसे, और ऊपर लिखना होगा इंडेक्स, यहाँ पे इंडेक्स, देन स्टार्ट योर बिग बॉक्स। एक बार फिर से मैप देख लेना जो हमने प्रोवाइड किया है, ठीक है। नीट एंड टाइडी विथ पेंसिल, नो कलर्स, नथिंग। ये टेक्स्ट बुक में बताया गया है कलरफुल, हमारे मैप में एग्जाम के लिए हम प्योरली पेंसिल यूज करेंगे। क्लियर, अलग अलग शेड बता देना, उस हिसाब से यहाँ पे लिखना। नेक्स्ट, अब ये जो शुगर केन और जूट का सेक्शन है दैट विल कंप्लीट टुडे। तो शुगर केन मेजर क्रॉप ऑफ अ कंट्री, मैक्सिमम शुगर प्रोडक्शन कहाँ पे होगा? नेचुरली वर्ल्ड में, इंडिया में। इन प्रोडक्शन इंडिया रैंक्स प्रोडक्शन सेकेंड आफ्टर ब्राज़ील। लेकिन सोन एरिया, मतलब ज़रूरी नहीं है कि तुम जितने घंटे पढ़ाई करने बैठे एक जगह पे और 4 घंटे के बाद रूम के बाहर निकले, वेरी इंटरेस्टिंग, लिसन, कि 4 घंटे रूम में बैठ गए, ठीक है, मम्मी 4 घंटे बाद पढ़ने जा रहा हूँ, डिस्टर्ब मत करना, निकले एग्जैक्टली 4 घंटे के बाद। एक्चुअल में पढ़ाई की 1 घंटा टोटल मिला के, पहले 15-20 मिनट, फिर ये जलसे मारे, मम्मी बेचारी इतनी भोली मम्मी, बच्चे कहेंगे मैम आप समझते नहीं हो, डोंट से दैट वे, बट
बट आई नो बेचारी मम्मी, आई वुड ऑलवेज से तुम पे इतना विश्वास रख दे कि हाय मेरा बच्चा 4 घंटे पढ़ के आ गया, चलो क्या खाओगे, नींबू पानी दे दूँ, चलो 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 मस्त मस्त एकदम खाना रेडी है, 12-1 बज गया, बेबी इज सो हैप्पी। टोटल पढ़ाई 1 घंटा की है, मतलब कि टाइम इन्वेस्ट किया 4 आवर्स, एक्चुअल प्रोडक्शन 1 आवर। तो मैक्सिमम शुगर केन सोन इज इन इंडिया, एरिया वाइज इंडिया में ज़्यादा सो हो रहा है लैंड पे इन द वर्ल्ड। प्रोडक्शन हो रहा है सेकेंड लेवल पे, सबसे पहला ब्राज़ील। शुगर, गुड़, एज आई टोल्ड यू जस्ट नाउ, खांडसरी, एथेनॉल are produced out of sugarcane. Black fertile alluvial lava soil, hot humid climate, 21 to 27 temperature, 75 to 100 rainfall. Learn it. हर एक क्रॉप्स के लिए, फूड ग्रेन्स के लिए, पल्सेस के लिए, ऑयल सीड के लिए, कैश क्रॉप्स के लिए, हर एक के लिए एक टेबल ही बना दो एंड यू विल, खुद बनाओगे तो ज़्यादा याद रहेगा। ठीक है, क्लाइमेट, क्रॉप्स, तो हर एक क्रॉप के लिए क्लाइमेट अलग 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 डाल दो। ठीक है, रेनफॉल, टाइप ऑफ सॉइल, टेम्परेचर, स्टेट कहाँ कहाँ पे ग्रो हो रहा है, तो सबसे पहले 2 स्टेट। एंड सो वंस अगेन, शुगर केन रिक्वायर्स ब्लैक फर्टाइल alluvial lava soil, hot humid climate, 21 to 27 temperature, 75 to 100 rainfall. All these are very important for growth of sugarcane. And UP, very important, very 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 important. UP is at the top in the area zone, but Maharashtra leads in the production. जैसे इंडिया और ब्राज़ील का हमने किया, वैसे यूपी और महाराष्ट्र। यूपी में एरिया वाइज ज़्यादा है, लेकिन ग्रो कौन ज़्यादा कर रहा है प्रोडक्शन में, आगे कौन है, महाराष्ट्र। साउथ गुजरात एंड सौराष्ट्र ऑल्सो प्रोड्यूस मोर शुगर केन इन Gujarat. Now jute. Maximum jute production in the world is in India. Jute fiber is called golden fiber, very important. जूट क्लॉथ बनता है उससे, कपड़े जो बनाते हैं कई बार तो उसमें जूट अकेले के कपड़े बनाएंगे तो इच, मतलब इचिंग होगी, पहन नहीं पाएंगे, हिलते रहोगे पूरे दिन, राइट। बट जूट क्लॉथ बनता है तो उसमें सिल्क ऐड करते हैं या कॉटन ऐड कर देते हैं सो दैट इट बिकम जूट थोड़ा होता है। फिर गनी बैग्स बनाते हैं, मतलब कोथड़ा पहले बनते थे, अब उसकी जगह प्लास्टिक के बैग ने ले लिया है जिसमें वीट, ज्वार, बाजरा, शुगर केन जो भी मम्मी मंगवाती है, सीजन का काम होता है, तो अब प्लास्टिक के बड़े बड़े वाइट बैग्स में आता है। पहले गनी बैग्स ब्राउन कलर के आते थे, उसमें आते थे। मैट्रेसेस, रोप्स, बैग्स, फुटवेयर्स, हैंडीक्राफ्ट आइटम एक्सेट्रा आर मेड फ्रॉम जूट। इंडिया हैज़ अ स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिशन फ्रॉम बांग्लादेश रिलेटेड टू चीप लेबर इन जूट इंडस्ट्री। अब बांग्लादेश देखो, इंडिया मैक्सिमम जूट प्रोडक्शन में है इन द वर्ल्ड, बांग्लादेश मैक्सिमम जूट का प्रोडक्शन, मतलब जूट के मटेरियल बनते हैं, अलग अलग प्रोडक्ट बनते हैं और सेलिंग उसकी हाईएस्ट वर्ल्ड में। वाई? क्योंकि बांग्लादेश अभी भी इतना गरीब कंट्री है कि वहाँ के लोग बहुत कम पैसे में काम करने के लिए रेडी हो जाते हैं। नेक्स्ट, वहाँ पे भी ज़्यादा जूट प्रोड्यूस हो रहा है, रॉ जूट, तो नेचुरली कंपटीशन है इंडिया और बांग्लादेश में। जूट रिक्वायर्स फर्टाइल, स्पेलिंग इज रॉन्ग ओवर हियर, फर्टाइल FER, fertile soil of the delta region where new sediment is deposited every year. It requires hot humid climate, 30 to 40 temperature, more than 100 centimeter rainfall. Jute is grown more in Ganga Delta in West Bengal, जो हमने कहा पहले, आसाम, बिहार, उड़ीसा, यूपी। So next time we start from here, तब तक टेबल बना दो, बाद में इसका एडिशन कर लेना टेबल में। मैप, स्टेट मैप प्लीज़ 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 कंप्लीट रिवाइज करते रहो, वीडियोस को फास्ट फॉरवर्ड में मत देखना, बहुत ज़्यादा स्लो मोशन में भी देखने की ज़रूरत नहीं है। लेट इट गो एट इज नॉर्मल पेस। एंड आज का अगर थोड़ी आलस करोगे 110% वो जो है ना 90 अप वाले ड्रीम्स बड़े बड़े, वो पॉसिबिलिटी नहीं होगी। ठीक है, सो टेक केयर, बी सेफ, एन्जॉय विथ योर पेरेंट्स। थैंक यू सो मच।